إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أتى على المسلمين الشهر خير لهم من رمضان وما أتى على المنافقين الشهر شر لهم من رمضان عزیز بھائیو، اللہ احکم الحاکمین کی بڑی عظیم نعمتوں میں سے، اللہ کے بڑے بڑے احسانات میں سے، اللہ کے بڑے انعامات میں سے بڑا عظیم انعام شہر رمضان ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور آج بڑی سعادت کی یہ گھڑی اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک عطا فرما کے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ تھوڑا نظر دوڑائیں، کتنے ہی ایسے بچھڑے یاد آتے ہیں جو پچھلے رمضان میں موجود تھے لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رمضان المبارک کے جب 6 مہینے رہ جاتے تو اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے، اللہم بلغنا الی رمضان، اے اللہ رمضان میں 6 مہینے باقی ہیں، اس آنے والے رمضان تک ہماری عمروں میں برکت ہی ڈال دے، اللہ یہ آنے والا رمضان ہمیں نصیب فرما دے۔ 6 مہینے پہلے دعائیں مانگنا شروع کر۔ ان کو ان رمضان کی گھڑیوں کا علم تھا، ان برکتوں کا علم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فضیلت والے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کے اعلانات کا ان کو پتا تھا، اللہ کی طرف سے بڑی بڑی آفرز کا ان کو پتا تھا، اس لیے وہ 6 مہینے پہلے اللہ سے دعا مانگتے، اور جب رجب کا مہینہ آتا تو وہ کہتے اللہم بارک لنا فی رجبنا وفی شعباننا، اے اللہ ہمارے رجب میں اور ہمارے شعبان میں برکتیں عطا فرما دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو رمضان المبارک کے اندر باقاعدہ طور پہ دروس دیا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ خوشخبری دیتے، ایھا الناس قد اظلکم اللہ علیکم شہر مبارک، کہ بہت قریب ایک بڑا بابرکت مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، تمہارے اوپر چھاؤں کرنے والا ہے، تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے، وہ برکت والا مہینہ تمہارے قریب آنے والا ہے، یعنی قریب پہنچنے والا ہے، اس کی تیاریاں شروع کر دو۔ اور صحابہ شعبان کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے روزے رکھنے کی پریکٹس شروع کر دیتے تھے، اور عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے کہ ہم نے اس سے زیادہ روزے آپ کو رکھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، رمضان کا مہینہ سال کے بعد ہمارے پاس کیا کرنے کے لیے آتا ہے، کیا دینے کے لیے آتا ہے، یہ ایک بہت بڑا فلسفہ جو ہمیں زندگیاں گزر جاتی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ رمضان ہے، صبح پابندی لگتی ہے کھانے کی، شام تک مغرب تک اللہ رب العالمین نے کھانے پہ پابندی لگا دی، کوئی چیز نہیں کھا سکتا، کوئی چیز نہیں پی سکتا، روزہ دار۔ لیکن یاد رکھیں صرف کھانے اور پینے پہ پابندی نہیں ہے، روزے کا بہت بڑا مقصد اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا لعلکم تتقون۔ اس روزے کا مقصد، اصل جو مقصد ہے وہ تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے، اللہ کے پاس بڑا فراوانی کے ساتھ رزق ہے، یاد رکھیں، بلکہ آپ اور ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں وہ چیزیں میسر آ رہی ہوتی ہیں جو باقی 11 مہینے میسر نہیں ہوتی۔ ہماری افطاریاں دیکھ لیں، ہماری سحریاں دیکھ لیں، آپ کبھی رمضان کے مہینے کے علاوہ صبح اٹھیں، آپ فجر کے بعد کہیں چلو جی آج فجر سے پہلے ناشتہ کرتے ہیں، آپ کا ناشتہ کرنے کو 6، 7، 8 بجے دل نہیں کرتا، لیکن یہ سحری کی برکت ایسی ہے اللہ کی قسم، رات کو آپ جتنا مرضی کھا کے سوئے ہیں، صبح سحری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کھانوں میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسحروا، سحری لازمی کیا کرو، فإن فی السحور برکہ،
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहरियां किया करो, क्योंकि सहरियों में अल्लाह की तरफ से बरकत, ये रमजान की बाबरकत घड़ियों के अंदर ये अल्लाह की तरफ से बरकतों का नुज़ूल है। अल्लाह अकबर। सिर्फ यही बात बस नहीं है, अल्लाह ताला ने इस अजीम महीने के अंदर हमारा बहुत बड़ा जो बहाना है वो भी खत्म कर दिया। शैतान कुछ नहीं करने देता, शैतान हमें इस रास्ते पर लगाता है। शैतान बड़ा लईन है, शैतान ये है, शैतान वो है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब रमजान का चांद नजर आ जाता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुल्लिकत अबवाब जहन्नमा, अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देते हैं। वफुतिहत अबवाबुल जन्ना, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के सारे दरवाजों को खोल देते हैं। और साथ फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह तबारक व तआला चांद नजर आते ही वसुफिदत शयातीन, अल्लाह सारे शैतानों को जकड़ देता है, बहाना खत्म है। लेकिन याद रखें, अगर कोई शख्स रमजान मुबारक का चांद नजर आने के बाद, रमजान की घड़ियां शुरू होने के बाद अगर उसने अपनी रूटीन बदली नहीं है, अगर उसकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आई है, अगर उसकी जिंदगी में चेंज पैदा नहीं हुआ है, तो फिर याद रखें इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, फिर शैतान नहीं मेरे भाई, फिर उस शख्स को अपने नफ्स का मुहासबा करना। इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, उसका नफ्स उसको बुराइयों पर उभारने वाला है, फिर वो अपने नफ्स को दुरुस्त कर ले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा रमजान के शुरू होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के साथ सुलह करते, रमजान के शुरू होने से पहले अपनी रमजान की तैयारियां शुरू कर। हमारा अजीब मिजाज है, हमारी मस्जिदों के इमाम, हमारी मस्जिदों के मौलवी, खतीब हजरात वो तौबा वाला जुमा आखिरी रमजान के आखिरी जुमे में पढ़ाते हैं। ये बात समझ नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अल्लाह ना करे हमारी किसी रिश्तेदार के साथ लड़ाई हो जाए, फिर उस रिश्तेदार से हमें कोई चीज मांगने की जरूरत पेश आ जाए। मैं बात आपको समझाने के लिए मिसाल देता हूं। लड़ाई है, बोल चाल बंद है, वो उसके घर आना नहीं चाहता, वो उसको देखना नहीं चाहता, वो उससे नफरत कर रहा है, वो उससे नफरत कर रहा है। खानदान वालों ने, बरादरी वालों ने कहा चलो फिर आपकी लड़ाई तो है, उनके घर से रिश्ता मांग लो। आप ईमान से मुझे बताएं, आप खानदान वाले हैं, रिश्तेदारी वाले हैं, आप उस घर से रिश्ता मांगने पहले जाएंगे या पहले सुलह करेंगे? पहले सुलह करेंगे, पहले सुलह के मामलात करेंगे, फिर जाके आप उनसे रिश्ता मांगेंगे, फिर जाके उनसे कोई चीज मांगेंगे। याद रखो मेरे अजीज भाई, अजीब ये मामला है, अजीब ये मामला है कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज है, गुनाहों के साथ हम लुथड़े हुए हैं और हम तौबा एंड पे जाके करते हैं, आखिर में तौबा करते हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस महीने को शुरू होने से पहले अल्लाह के साथ सुलह कर। अल्लाह कहता है फलम्मा अज़ागू अज़ाग अल्लाहु कुलूबहुम, जब इनके दिल टेढ़े हो जाते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां इंतहा को पहुंच जाती हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह कहता है फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके दिलों को दुरुस्त नहीं करता। फलम्मा अज़ागू मा अज़ाग अल्लाहु, अल्लाह कहता है अल्लाह इनके दिलों को टेढ़ा ही रखता है। अपने दिलों की बीमारियों को रमजान से पहले दुरुस्त कर। अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा के दरवाजे खोले, पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन से सुलह कर, और सुलह तौबा रुजू अल्लाह को बड़ा पसंद है। अल्लाह अकबर। असलाफ वो अपने गुनाहों की पहले माफियां मांगते थे, रो रो के अल्लाह रब्बुल आलमीन को मनाते थे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर। और याद रखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला अल्लाह तबारक व तआला उसको साफ शफाफ करके ऐसे कर देता है कमन ला ज़म्ब लहू, गोया कि उसका कोई गुनाह है ही। पहले अपने गुनाहों की माफी मांगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहले बनाए। और फिर अल्लाह ताला ही खुद फरमाते हैं
तूबू इलल्लाही, अल्लाह की तरफ तौबा करो, अय्युहल मोमिनून, ऐ मोमिनो, लअल्लकुम तुफलिहून, अगर तुम तौबा करोगे अल्लाह तुम्हें फिर कामयाब फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें कामयाबियां फिर अता करेगा। हजरत उमर कहा करते थे, इजलिसु इंद तव्वाबीना, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को हजरत उमर ये तलकीन किया करते थे, इजलिसु इंद तव्वाबीना, देखा करो मस्जिदों के अंदर जाके अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ा के रोने वालों को, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने वालों को देखा करो। क्यों? फइन्नहु अरक्कु क़ल्बिन, क्योंकि उनके दिल बड़े नरम हुआ करते। तौबा करने वालों के साथ, उनके साथ मजलिसें किया। अल्लाहु अकबर। और हम अगर थोड़ी सी वर्ग गर्दानी करें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की, मेरे अजीजों, मैं आपको यह बात बतलाना चाहता हूं कि हमें रमजान में करने वाले काम कौन कौन से हैं। पहला काम हमने तौबा इस्तिग़फार अल्लाह रब्बुल आलमीन से करना। सबसे पहले यह काम करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे। अल्लाह तबारक व तआला को गुनाहों से माफी मांगने वाला बंदा बड़ा पसंद है। याद रखो, यह गुनाहगार अल्लाह को पसंद नहीं है। क्यों? अल्लाह ही कहता है, इन्नल्लाह ला यहदी कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिकों को, गुनाहगारों को, अल्लाह रब्बुल आलमीन पापियों को अल्लाह कभी भी रास्ता नहीं दिखाता। लेकिन वो बंदा जो तौबा करने के लिए आ जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा तौबा करने के लिए अल्लाह की तरफ आता है, अल्लाह को खुशी कितनी होती है। नबी अलैहिस्सलाम ने यह बात समझाने के लिए एक मिसाल पेश की। एक शख्स है, वो अपनी सवारी पर खाने पीने का सामान लाद के लंबा सफर करने के लिए निकला है। लंबा सफर है, जंगलों में गया है, बियाबान है, कोई आसपास कोई आबादी नहीं है, कोई झोंपड़ी तक नहीं है, वो अकेला सफर कर रहा है। उसकी सवारी है, सवारी को उसने छोड़ दिया और वो दरख्त के साए के नीचे आराम करने के लिए बैठा, लेट गया। उसको नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो उसकी सवारी गायब है। आप जरा थोड़े से तसव्वुरात की दुनिया में जाएं। बंदा अकेला हो, एक सवारी हो, खाने पीने का सामान उस पे हो, लंबा सफर उसने करना हो, सवारी उसकी गायब हो जाए, कोई मदद करने वाला ना हो, कोई वहां पर मौजूद ना हो और वो सवारी गायब हो जाए। वो उठे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स उठा अपनी सवारी को ढूंढने के लिए, इधर उधर उसने सवारी को देखा, परखा, नहीं मिली। आखिर बेचारा मायूस होकर बैठ गया और कहता है, बस अब मौत के सिवा और कुछ नहीं। वो बड़ी मायूसी के साथ बैठा है, कोई उसका चारा नहीं है, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। फिर वो मायूस होकर बैठ गया, उसकी आंख बंद हुई, अचानक उसकी आंख खुली है, उसने अपने सामने अपनी सवारी को पाया। तो क्या कहता है? उसने कहना था, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी व अना अब्दुका, अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तेरा बंदा और तू मेरा अल्लाह है। उसने कहना तो ये था, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी, अल्लाह तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं। वो खुशी के मारे उसका दिमाग काम करना छोड़ गया, उसकी जुबान से अल्फाज फिसल गए, उसकी जुबान से अल्फाज उलट निकल गए। वो कहता है, अल्लाहुम्मा अंत अब्दी व अना रब्बुका, अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूं। हाँ मेरे अजीज भाइयों, उसको इतनी खुशी हुई है, अल्फाज बदल गए, खुशी के मारे अल्फाज चेंज कर दिए, लेकिन आसमान वाला रब भी मुस्कुरा दिया उसकी इस बात से, मेरे बंदे को खुशी कितनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस को बयान करने के बाद, इस वाक़े को बयान करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लल्लाहु अफराहु बितौबति अब्दिही मिन हादा, आसमान वाला रब अपने तौबा करने वाले बंदे पे इस बंदे से भी ज्यादा खुश होता है। तौबा के दरवाजे खुले, अल्लाहु अकबर। तौबा करके देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सुलह करके देखिए। ये रमजान तब्दीलियां करने के लिए आया है। अगर रमजान के अंदर रोजा रख के वही बेवकूफियां, वही गिबतें, चुगलियां, वही फराड, धोखे, बेईमानियां, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियां, वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की धज्जियां बखेरना, वही अपनी रूटीन अगर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह तबारक व तआला को लैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबा,
जो बंदा रोजा रखने के बावजूद अपनी करतूतों को चेंज नहीं करता, अपने आप को बदलता नहीं है, याद रखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को उसकी भूख और प्यास की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं अल्लाह को। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कम मिन साइमिन लैसा लहु मिन सियामिही इल्ला दमा, क़यामत के दिन कितने रोजादार ऐसे होंगे, कितने रोजादार ऐसे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम मिन साइमिन, कितने रोजादार ऐसे, एक लंबी तादाद ऐसे रोजेदारों की हो, क्या लैसा लहु मिन सियामिही इल्ला दमा, उनके रोजे ने उनको सिवाय भूख और प्यास के कुछ भी नहीं दिया। वल अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह हमें महफूज फरमाए। और फिर रोजा जिसका कबूल है और जिसने रोजे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी किया है, उसके लिए क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिस्साइमी फरहतानी, रोजादार के लिए दो अजीम खुशियां हैं। कौन कौन सी? एक खुशी जब वो रोजा इफ्तार करने लगता है, सारे लंबे दिन की भूख और प्यास को बर्दाश्त किया है, हाँ अफ्तारी करने लगा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें उसके सामने मौजूद है, हाँ अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता है बिस्मिल्लाह पढ़ के, वो खुशी का वक्त होता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वफरहतुन इंदा लिकाई रब्बिही, और दूसरी खुशी उसको कब होगी, जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा, फिर उसका रब उसको उसके रोजे का अजर देगा। आपने हदीस सुनी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं ही दूंगा। क्या मतलब है इसका? क्या बाकी अमाल की जज़ा अल्लाह नहीं देता? अल्लाह ने रोजे का सवाब लिखने से फरिश्तों को रोका है। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें अंदाजा नहीं, तुम्हारे पास वो पैमाना नहीं, तुम नहीं लिख सकते, बस लिख दो, हाजिरी लगा दो, मेरे बंदे ने रोजा रखा है, मेरी रजा की खातिर रोजा रखा है। आसमान वाला रब कहता है इस रोजे की जज़ा भी इसको मैं ही दे सकता, ये रोजा है। लेकिन कौन सा रोजा है? जो हराम जदगियों से पाक है, जो गीबतों झूठों से पाक है, जो नाफरमानियों से पाक है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी बड़ी बगावतों से पाक है, वो रोजा अल्लाह को पसंद है। अल्लाहु अकबर। और दूसरा काम याद रखें, रोजे की हालत में खुदारा हराम खाना छोड़ दें। पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ये वादा करें, हराम जो खा लिया अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसकी माफी में। ओ भाई, ये छोटी सी बात नहीं है, हराम खाने से इबादतें अल्लाह कबूल नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी मिसाल दी है, वो शख्स लंबा सफर करके, हाँ बाल उसके अटे हुए, जिस्म उसका गुबार से आलूद है, कपड़े उसके मट्टी से भरे हुए, लंबा सफर करके पांव में सोजश है, बैतुल्लाह के सामने खड़ा है, मैदान अरफात के अंदर खड़ा है, अल्लाह से दुआएं मांग रहा है, हाथ ऊंचे करके, लंबा सफर करके थकावट से चूर है, दुआ करता है या अल्लाह या रब्बी, मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह। जितनी बार भी अल्लाह अल्लाह कहता है, आसमान वाले रब की तरफ से दुआ उसकी रद्द कर दी जाती है, और जवाब क्या आता है, मलबसुहु हरामुन गुज़िया बिल हरामी लिबासुहु हरामुन, इसका लिबास हराम का, इसकी ग़िज़ा हराम की, इसका रहना सहना हराम का, इसका खाना पीना हराम का। अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आसमान वाले रब की तरफ से उसकी सारी दुआओं को रद्द कर दिया जाता है। क्यों? हराम खाने वाला है। हमें समझ नहीं आती हराम क्या है। गौर कीजिए, बड़े बड़े खानदान और बड़ी बड़ी बरादरियां, बड़े बड़े जिम्मेदार और बड़े बड़े जनाब ताजर, सबसे बड़ा हराम अपनी बेटियों का हिस्सा खा रहे हैं। हाँ जी, हमारी नजर सिर्फ रिश्वतखोरों पे है, हमारी नजर सिर्फ ये चोरों पे है, डाकुओं पे है। हम जनाब कहते ये फलां वजीर डाकू है, फलां चोर है। ओ भाई, यहां पर जिसका जितना दाव लगता है कोई माफ नहीं कर रहा। कोई छोटी चोरी करता है वो भी चोर है, कोई बड़ी चोरी करता है वो भी चोर है। वो शेख यूसुफ तबी हाफिज़हुल्लाह ने मिसाल दी, एक ट्राला गन्नों का जा रहा है, उसमें से एक बंदे ने गन्ना खींच के वो चूप लिया है, वो चूस लिया है, वो गन्ना खा लिया है। अल्लाह की कसम उसका वो हराम का है।
उसकी वो चोरी है। इस गन्ने चोर को आप बिठा दो वजीर आजम की कुर्सी पर, वो क्या करेगा? हाँ जी, क्या वो गन्ने चोरी करेगा? ओ भाई, वो फिर बड़े लेवल पे चोरी करेगा, जिसका जितना लेवल है वो उस लेवल पे चोरी करके हराम खा रहे। और चोर और हराम खाने वाले की इबादत कबूल नहीं है। आमिर बिन अब्दुल्ला अत-तमीमी रहमहुल्लाह ताला एक बड़े ताबई थे, बसरा के रहने वाले थे। साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ये जंग के मैदान में शामिल थे। सारे इन रूमियों को अल्लाह तबारक व तआला के इन मुजाहिदीन ने मार भगा दिया और उनके मालों पे कब्जा कर लिया। माले गनीमत इकट्ठा है, अल्लाह अकबर। और उनके दरबार में हजरत साद बिन नबी वकास बैठे हैं, तख्त पर बैठे हैं। सारे मुजाहिदीन को कहा, लाओ भाई सारा माले गनीमत का माल इकट्ठा करो, यहां पर इसकी गिनती करो, यहां 5वां हिस्सा निकाल के अल्लाह अकबर रियासत मदीना की तरफ भेज दो, बाकी माल मुजाहिदीन में तकसीम करें। लाओ, गिनती हो रही थी, लोगों ने देखा एक शख्स, ये आमिर बिन अब्दुल्ला रहमहुल्लाह अपने सर पे एक बड़ा भारी मटका उठा के आ रहे। साहबा कहते हैं हमने देखा, अल्लाह की कसम उस जैसा बर्तन हमने कभी जिंदगी में देखा ही। बड़ा खूबसूरत बर्तन था। जब उसको खोला, हीरो और जवाहरात के साथ भरा हुआ था। बड़ी मुश्किल से उतार के नीचे रखा। किसी कहने वाले ने क्या दिया, आमिर तूने कहीं इससे कोई चीज उठाई तो नहीं, पीछे कोई चीज छुपा के दुनिया आया? कहने लगा अल्लाह की कसम, अगर ये बैतुल माल और ये माले गनीमत का हुक्म मुझे अल्लाह की तरफ से ना होता, इन काफरों का छीनना है और उठा के लाना है, मैं इस दुनिया के माल को ठोकर मार देता। मेरे नजदीक इस दुनिया के माल की हैसियत उतरे हुए नाखन जितनी है, उतरे हुए नाखन जितनी है। क्या बात करते हो? मैंने अपनी अल्लाह से यही दुआ की है, अल्लाह मुझे हलाल खाने की तौफीक अता फरमाना, मुझे हराम से बचा ले। वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतों में उनको लज्जत महसूस होती थी। हमारी बातों में लज्जतें क्यों नहीं? हमारे रमजान में लज्जतें क्यों नहीं है? मेरे अजीजों, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन को मना ले, बड़ा मौका है अल्लाह की कसम। और फिर अपने रिज़्क पे तवज्जो दें। और तीसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अमाल करने से पहले 2 बातों का हुक्म दिया है। सबसे पहले उस अमल करने से पहले देखें कि मैं अमल कर किस वजह से रहा, अल्लाह की रजा की खातिर कर रहा हूं। और दूसरे नंबर पे ये देखें कि मैं ये अमल कर कैसे रहा हूं, क्या मेरा ये अमल सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है। आज ये 3 सबक याद रखें। रमजान में अपने रब को मना लें अभी, और दूसरे नंबर पे हराम से बच जाएं और पक्का पक्का बचें। ये नहीं कि रमजान के महीने में भाई रिश्वतें बंद, रमजान के महीने में हराम बंद, उसके बाद दोबारा फिर शुरू करेंगे नए सिरे से। हाँ जी। और तीसरे नंबर पे अपने अमाल के अंदर इखलास पैदा करें, सुन्नत के मुताबिक करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाइयों से एक गुजारिश है कि फिलहाल